Good morning, students. Let's study chapter 11 of GK, traditional costumes. Traditional बेटा क्या होता है? पुरातन. And costumes किसे कहते हैं? Style of dress. So here in this chapter we will read about different traditional costumes which belong to different countries. Traditional costumes have always been a symbol of pride, beauty and honor in every country. They not only represent the pride and prestige of the country but also impart the feeling of beauty and respect to the person who wears them. जो ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स होते हैं वो एक कंट्री में बहुत ही मान सम्मान के सिंबल माने जाते हैं. ये सिर्फ उस कंट्री के प्राइड और प्रेस्टीज को ही रिप्रेजेंट नहीं करते बल्कि पहनने वाले पर्सन के माइंड में भी ब्यूटी और रिस्पेक्ट की फीलिंग लाते हैं. So in this chapter the pics of some traditional costumes are given and we will read the description and identify those dresses. So first is, this is a traditional Malay dress and is the national dress for Brunei and Malaysia. It is known as an enclosed dress because of its closed structure and the loosely stitched appearance which covers the complete body. The name of this dress is Baju Kurang. So ये क्या है? मलेशिया की और ब्रुनाई की नेशनल ड्रेस है. इसे एनक्लोज्ड ड्रेस भी कहा जाता है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ही क्लोज्ड होता है, लूजली स्टिच्ड अपीयरेंस होती है और पूरी बॉडी को ये कवर करती है. द नेम ऑफ दिस ड्रेस इज बाजू कुरंग. नाउ नंबर 2 इज, इट इज़ अ स्कर्ट which is cut in a slightly circular way and reaches below the knees. It is usually worn by the long skirt, shirt, bodies and an apron by women of Germany, Austria, Switzerland and Liechtenstein. The name of this dress is Dirndl. So see, this is the dress. ये क्या है? सर्कुलर वे में बनाई हुई ड्रेस का जो स्कर्ट टाइप ड्रेस होती है और ये नीज़ के नीचे तक जाती है. इसे लॉन्ग स्कर्ट के साथ, शर्ट के साथ या बॉडीज़ क्या होता है? टॉप पार्ट ऑफ द ड्रेस और या एंड एप्रन के साथ पहना जाता है. ये कौन कौन से कंट्रीज़ में पहनी जाती है? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्ज़रलैंड एंड लिechtenstein. द नेक्स्ट इज़ नंबर 3 इज़, it is worn by the flamenco dancers in Spain during their dance performances and shows. It is a long dress that reaches the ankle. It is adorned with ruffles in both the skirt and the sleeves. The name of this dress is Crazy Flamenca. See here, this is the dress. ये बेटा फ्लेमेंको डांसर्स. फ्लेमेंको इज़ मेनली अ स्टाइल ऑफ स्पेनिश म्यूज़िक. सो स्पेन में फ्लेमेंको डांसर्स के द्वारा पहनी जाने वाली ये ड्रेस है ड्यूरिंग देयर डांस परफॉर्मेंसेस. ये लॉन्ग ड्रेस है जो एंकल तक जाती है और इसको किस तरीके से खूबसूरत बनाया जाता है? विद रफल्स इन बोथ द स्कर्ट एंड द स्लीव्स. स्लीव्स में भी और स्कर्ट में भी, दोनों में ये रफल्स होती हैं. सी हियर, है ना. सो द नेम ऑफ दिस ड्रेस इज़ क्रेजी फ्लेमेंका. So next is, it is considered to be a formal clothing as it is worn during the occasional parties, festivals and weddings in Hawaii. तो Hawaii is mainly a place in USA. So ये ड्रेस जो है इसे फॉर्मल क्लोथिंग भी कहते हैं क्योंकि हवाई में, USA में इस ड्रेस को ओकेजनल पार्टीज़ पर पहना जाता है. कभी कोई पार्टी, फंक्शन, फेस्टिवल, वेडिंग पर पहना जाता है. द नेम ऑफ दिस ड्रेस इज म्यू म्यू. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पेज, हियर इज, दिस ड्रेस originally belongs to Japan and is worn by the Japanese during their cultural events and on weddings. It is a long T-shaped dress which covers the complete body and has wide and long sleeves on both the sides. So the name of this dress is kimono. See here,
ये ड्रेस जो है मेनली जापान कंट्री को बिलोंग करती है। जब वहाँ पर कल्चरल इवेंट्स होती हैं, वेडिंग्स वगैरह होती है, एट दैट टाइम पीपल वेयर दिस ड्रेस। ये टी शेप में ड्रेस है, लॉन्ग ड्रेस होती है, पूरी बॉडी को कवर करने वाली, एंड इट हैज़ वाइड एंड लॉन्ग स्लीव्स ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पर जो स्लीव्स हैं वो देखो कितनी वाइड एंड लॉन्ग है। द नेम ऑफ दिस ड्रेस इज किमोनो, बिलोंगिंग टू विच कंट्री? Japan. Now next is, this is a Vietnamese costume worn mostly by the women of the country. It is a tight outfit made of complete silk material, and the name of this dress is Ao Dai. So see here, ये वियतनाम की जो कॉस्ट्यूम है जो वहाँ की वुमेन पहनती हैं, ये टाइट आउटफिट है, सिल्क मटेरियल का बना होता है। द नेम ऑफ द ड्रेस इज आओ डाई। नेक्स्ट इज, इट्स अ स्पेनिश आउटफिट worn by Spanish Latin Americans. It's a white one-piece skirt popularly worn during traditional festivals and events. Name is bolera. ये क्या है? स्पेन में पहनी जाने वाला एक ड्रेस है, वन पीस स्कर्ट होती है जिसको ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स या इवेंट्स जब भी होते हैं, एट दैट टाइम वुमेन वेयर दिस ड्रेस। द नेम इज़ पोलेरा। सो कमिंग टू नेक्स्ट, it's also known as the Mandarin gown. This type of outfit is popular among Chinese men and women. It's a body-hugging one-piece gown which goes down till the toes. The name of this dress is Cheong Sam. See here, ये क्या है? इसे मैंडेरिन गाउन भी कहा जाता है। मेनली ये चाइना के मैन एंड वुमेन में काफ़ी पॉपुलर है दिस ड्रेस, और वन पीस गाउन है जो टोज़ तक, पाँव की फिंगर्स तक जाता है, टोज़ तक जाती है ये ड्रेस। द नेम ऑफ दिस ड्रेस इज चियोंग सैम। नेक्स्ट इज, it's a traditional garment worn by Lao and Thai women, particularly Northern Thai and Northeastern Thai women in Laos and Thailand respectively. It's a tube-like skirt which is worn in a variety of ways. In particular, it can indicate which region the wearer is from. So the name of this dress is Sin. So ये ट्रेडिशनल ड्रेस कौन से कंट्री की है? लाओ एंड थाई, इन जगह की ये ड्रेस है। ये ट्यूब लाइक स्कर्ट होती है जिसको विच इज़ वॉर्न इन अ वेराइटी ऑफ वेज। इन पर्टिकुलर इट कैन इंडिकेट विच रीजन द वेयरर इज़ फ्रॉम। इसको देखकर ये इंडिकेशन मिल जाती है कि वेयरर, पहनने वाला, किस जगह को बिलोंग करता है। द नेम ऑफ दिस ड्रेस इज सिंध। सो स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर वी हैव रेड अबाउट traditional costumes of various countries. So write the answers in your book and revise the chapter thoroughly.